So Christmas is all about what is a Christmas. तो क्रिसमस का अर्थ क्या है? Before we enter to that word of God, वचन पे जाने से पहले I want to tell you everything. मैं आपको Yes. बताना चाहती हूँ Jesus Christ coming is completely different from others guru. जब और गुरुओं का जन्म हुआ था उससे यीशु मसीह का जन्म बिल्कुल अलग था। There is so many priests. आपने कितने सारे पंडित There is so many prophets. कितने सारे भविष्यवक्ता हैं But they never announced before. लेकिन वो कभी पहले से उनके आने की भविष्यवाणी They नहीं never informed before. पहले से नहीं बताया गया The people, there is no prophecy about Allah that's going to come, Muhammad that's going to या come. मोहम्मद या अल्लाह के आने से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं हुई There is never information about all the Hindu gods. जितने देवी देवता हैं उनके आने से पहले भविष्यवाणियां नहीं There is no announcement. कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई There is no advance prophesying. कोई पहले से ही भविष्यवाणी नहीं हुई And there is no any announcement about, Buddha, that, what is that, Buddhi that they believe. और जो लोग बुद्धा में बिलीव करते हैं उसके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं हुई Nobody. कोई भी नहीं And no recorded. कोई रिकॉर्ड नहीं है And also even these people, they are coming and to looking for the true living God. और ये लोग खुद आकर भी सत्य की खोज में ही थे I was reading a Buddha book. पास्टर कह रहे बुद्धा की बुक पढ़ रही थी The Buddha wrote that he was looking for the truth. बुद्धा ने भी ये बोला कि मैं भी सत्य की खोज में हूँ So he left his home and he went to the Himalaya. वो अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पे चला गया And he was meditating and he was searching for the true God. और वो ध्यान लगा रहा था और सच्चे परमेश्वर की खोज में था And he was in, he never moved and he was sitting and he was meditating and he really want to know who is the true वो living ध्यान God. लगाता था और सिर्फ ये खोजना चाहता था कि कौन सा सच्चा परमेश्वर But है the people who are following Buddha, लेकिन जो लोग बुद्धा के पीछे चल रहे थे now those people become the Buddha, become their God. अब उनके लिए धीरे धीरे बुद्धा उनका खुद का परमेश्वर बनता चला So गया that is how the world religion happened. और ऐसे दुनिया में सारे धर्म बनते But गए Jesus Christ, पर यीशु मसीह before he come, उनके आने से पहले thousand years back, हजारों साल पहले ही announcement. पहले से ही भविष्यवाणी हो गई Even the when Adam and Eve, जब आदम और हवा they were created. उन्हें बनाया गया When they committing sin, उन्होंने पाप किया they fall. वो गिर गए But even that time, the word of God said, पर उस समय परमेश्वर का वचन क्या बताता है and they will be crushed in the, in the snake, the serpent, और जब सांप ने उनको डसा in the cross. मतलब क्रूस पर जब यीशु मसीह So they talk about that there is a man that going to come and crush the snake and the serpent. तो ये बताया गया कि एक क्रूस, अगर आप पुराने नियम में देखेंगे क्रूस के ऊपर एक सांप था, वो ये बताया गया कि यीशु मसीह क्रूस पे शैतान के कामों को नष्ट कर देंगे And he will overcome the Satan. और वो शैतान के कामों पर पार पाएंगे So from the creation, from the beginning, और शुरुआत से मतलब उत्पत्ति से they talk about Jesus. यीशु मसीह की बात चलती ही आ रही थी And then now the Isaiah. अब आप देखें जब यशायाह भविष्यवक्ता Isaiah is before Jesus Christ. यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले आया था After Isaiah, यशायाह के बाद 1000 years back, हजारों साल बाद Jesus Christ यीशु came. मसीह आया Isaiah chapter 7, यशायाह की 7वें अध्याय verse 14. 14वें वचन में There will be a virgin conceive a child, पहले से ही यशायाह ने बोल दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती and होगी his name will call like Emmanuel. और उस बच्चे का नाम He इमानुएल will be the Prince of Peace, क्योंकि वो राजा शांति का राजा होगा and he will be the one who is going to deliver us. क्योंकि वो होगा जो हमें छुटकारा देने वाला And the Micah was prophesying. और मीका भविष्यवक्ता ने भी Verse 5 verse 2. Micah 5 verse 2. There will be a ruler delivered in Bethlehem, तो मीका ने पहले ही बोलती कि बेथलेहम में एक रूलर आएगा and his kingdom is the everlasting और kingdom. उसका राज्य ऐसे होगा जिसका कोई अंत ना होगा So many prophets prophesying about Jesus आप ये Christ. देखिए कितने सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु के आने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी Before Jesus Christ was coming, यीशु मसीह आने वाले थे उससे पहले announcing that how Jesus Christ is going to come. यीशु मसीह कैसे आएंगे ये भी बताया गया था The virgin will be conceived, कि कुंवारी गर्भवती होगी and his name will be Emmanuel. और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा So all the prophecy तो सारी भविष्यवाणी in the Old Testament, पुराने नियम में they prophesied about this Messiah. तो यशा तो मसीहा के आने के लिए पहले ही भविष्यवाणियां हो गई थी And the Ephesians say, और इफ्सियों की किताब in the में right time, कि सही समय पर in the right time, when the time comes. जब समय सही हुआ परमेश्वर Now के last समय Sunday, our brother Lex was preaching about that, how Jesus come तो जब पिछली बार ब्रदर एक्स ने बताया कि कैसे यीशु मसीह आए in the book of Luke. लूक की किताब से So before Jesus Christ come, तो लूका में जब बताया गया कि यीशु the मसीह से Gabriel पहले visit to John the Zechariah. तो परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है जिब्राइल वो जकरिया के पास आया Before Jesus Christ come, यीशु के आने से पहले before Jesus was pregnant, अभी तक तो यीशु मसीह
temple. जो याजक मंदिर में सेवा करता था, That man is a righteous man. उसका नाम जकरिया था, वो एक धर्मी व्यक्ति He था। got married. उसकी शादी हुई, Long time on the heaven side. बहुत साल हो गए, बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चा नहीं हुआ। 60, 70, 80 years. 60, 70, 80 साल। Zechariah and Elizabeth, जकरिया और एलिशिबा पति पत्नी थे। they are serving in the Lord. वो प्रभु की सेवा करते In थे, the priest, in the temple. याजक थे वो, But they didn't have a child. पर बच्चा नहीं था। But the Gabriel comes. पर जिब्राइल पर जब You will स्वर्ग have a आया, child. उसने बोला, परमेश्वर ने कहा है तुम्हें बच्चा होगा। And that announcement finished. और जब उसने कह दिया, After the 6 और months, 6 महीने के बाद that same angel वही स्वर्गदूत जिब्राइल went to the all the prophecy about his Old Testament. पुराने नियम की सारी भविष्यवाणी को पूरी करने के So लिए there is a woman. वहां पे लिखा था कि एक औरत होगी, That woman और उस औरत was a very virgin, वो बिल्कुल पवित्र और कुंवारी स्त्री थी। but he was already engaged for Joseph. पर अभी उस औरत की पहले से मंगनी यूसुफ नामक व्यक्ति से हो चुकी थी, But they have no relationship at all. पर अभी तक उनका कोई संबंध शुरू नहीं हुआ था। They have no boyfriend girlfriend. कोई शारीरिक संबंध नहीं शुरू हुआ था। In the Jew culture, यहूदी समाज में when the child is 14, 15 years, जब कोई इंसान और बच्चा 14-15 साल का even होता I है, see in Indian culture in the past, बात से कह रही थी, पहले के समय बाल विवाह हो जाता they था। used to be engaged at children time. 10-12 साल के बच्चों के लिए मंगनी कर देते थे कि बड़े होंगे तो शादी करवा So देंगे। when the time comes to get married, जब शादी का समय होता है, so they used to arrange the parents. तो माता पिता पहले से डिसाइड करके They रखते हैं। will see the tribe, वो देखेंगे कि यह जाति क्या है, Brahmin, what is that, Kshatriya, Kshatriya. Shudra है। So they are arranged and they're looking for their sons and daughters और वो and for their अपनी जाति husband. में अपने बच्चों के लिए लड़का लड़की ढूंढते Same हैं। thing the Jew culture. यहूदी समाज में भी ऐसा In होता the small time, है कि छोटे समय में they used to be arranged. Parents look for their sons, daughter, and then for their husband, for their wife. तो माता पिता अपने बच्चे के लिए पति या पत्नी बचपन में ही ढूंढ के फिक्स करके रख देते हैं। So they will just fix, but they will put it 10 years, 20 years, 15 years, 5 years, 6 years, 7 years. तो फिक्स तो कर देते हैं, लेकिन बच्चे के बड़े होने तक, चाहे उसमें 5 साल का फर्क हो, 10 साल या 15 साल, उसके बाद ही शादी करवाते हैं। So that is how the Jew culture also doing like that. तो यहूदी समाज में भी ऐसा ही होता है। So the same thing, इसी तरीके से Mary was 14, 13 years, तो मरियम भी 13-14 साल की होगी, and he was engaged for Joseph. और यूसुफ के साथ मंगनी कर The रहा Bible था। says Joseph is a righteous man, बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, and he is a holy वो man, पवित्र था, and he is the bloodline of Aaron. और वो आरोन की ब्लड लाइन से था। So Aaron is the priesthood line. वो एक याजक की प्रीस्ट लाइन से था। So he was the, when you see the Old Testament, Aaron was a priesthood level, he was the अगर पुराने Levite. नियम में देखें तो मूसा का भाई हारून जो था वो लेवी जाति से था, And they are coming from the David bloodline. और वो दाऊद की पीढ़ी से था। So now the person, and now he was engaged, Mary was engaged. तो मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। That is why the Matthew 18 when we read, तो मत्ती में जब हम पढ़ते हैं now the birth of Jesus Christ was followed. कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, After his mother Mary was a betrothed, means engaged to Joseph. कि यीशु मसीह की माँ मतलब कि मरियम जो थी उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो Before गई। they come together, उनके साथ आने से she पहले was found as the sign of by the Holy Spirit. अब जब यूसुफ उससे मिलता उससे पहले वो तो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। Matthew chapter 8, Matthew chapter 1 verse 18. मत्ती 1:18 में लिखा है। So how Matthew started like that? कैसे हुआ ये शुरुआत? Matthew is the wrote Jesus is the Messiah. तो मत्ती ने जो लेखक है मत्ती किताब का, उसने यीशु मसीह को मसीहा करके दिखाया है। And he is a disciple of Jesus. और वो यीशु मसीह का चेला था। He followed Jesus. वो यीशु के पीछे चलता था And he know how Jesus come. और उसको पता था कि यीशु मसीह कैसे आए थे। So he wrote it. तो इसलिए उसने उसको क्रम के अनुसार All लिखा। Jesus also talk about. और यीशु ने भी बात Whatever Jesus did. जो यीशु ने When किया। you read Matthew chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, all the accident, miracle took place, everything. अगर आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कार इस पे लिखे हुए हैं। But when we see Luke, अगर आप लूका का सुसमाचार Luke पढ़ते हैं, that Jesus is the Son of Man. लेकिन लूका ने सबसे पहले बताया कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र। So when you see them, what is that? Matthew, then Jesus Christ start from the David. तो अगर आप मत्ती के सुसमाचार पढ़ते हैं वहाँ पे दाऊद की संतान यीशु मसीह को दिखाया। But when we see the Luke,
लेकिन लूका किताब Luke start from the Jesus Christ generation from Abraham. लेकिन अब्राहम से कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और कैसे So the 14th generation, तो 14 पीढ़ियां Jesus Christ. फिर यीशु है। So now the Mary was engaged, अब मरियम की मंगनी हो गई but no love at all, पर प्रेम नहीं है, never meet at all. मिलना जुलना नहीं है, Mary was a very woman of fearing क्योंकि God. मरियम जो थी प्रभु के भय में जीने वाली औरत थी। Mary also a line of priesthood line. क्योंकि मरियम जो थी वो भी मतलब एक याजक की पीढ़ी से थी। So Mary was the cousin of Elizabeth. ऐसा बताया था कि मरियम एलिशिबा की एक दूर की बहन थी। If you really want to know who is the Mary, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मरियम कौन थी, then you will see the looks of the two. अगर आप लूका 2 पढ़ते हैं, Mary also expecting to the Savior. तो मरियम भी उद्धारकर्ता Her own Savior, that there would be a person who come and save her life. उसकी भी उम्मीद थी कि हाँ कोई उद्धारकर्ता आएगा जो And मुझे she बचाएगा। need a Savior. और उसको भी एक बचाने वाले की जरूरत थी And she really need a Savior. और उसको एक बचाने वाले की जरूरत थी। So she also expected. वो भी उम्मीद कर रही And she know all the Old Testament scripture. और उसने पुराने नियम की सारी There will be भविष्यवाणी a Son of God will come. कि परमेश्वर का पुत्र आएगा And they will be deliver us. और वो भी छुटकारा Rescue देगा, us. हमें So छुड़ाएगा। Mary know. तो मरियम जानती Because Mary also a priest line. कि मरियम भी पंडित की याजकों की लाइन से थी। So he know from the sin from the beginning. इसका मतलब उसने अपनी शुरुआत And she feared God. वो प्रभु के भय में जीती थी And she was longing for the expecting the Savior to और come. वो भी उम्मीद कर रही थी कि अरे मसीहा आएगा। Then in that situation, तो उस स्थिति में one day एक दिन the Holy Spirit come. पवित्र आत्मा आया। When you see the very clearly wrote in the book of Luke, लूका की किताब में साफ-साफ लिखा है that when the Holy Spirit come upon her, कि जब पवित्र आत्मा that you will be a conceive a child. तो लिखा है कि तुम एक बच्चा जनोगी। Mary was afraid. तो मरियम तो डर गई। Why Mary afraid? मरियम क्यों डर गई? See, when we read Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं when angel appeared to what is that? When angel appeared to John, जब कोई स्वर्गदूत जैसे यूहन्ना को दिखाई दिया that time also John was scared. तो उस समय यूहन्ना भी डर गया। When the angel appeared to Shepherd, the wise people, जब स्वर्गदूत चरवाहों को नजर आया then you see always the Bible talk about they are afraid. तो वो भी डर गए। Why they are afraid? क्यों वो लोग डर गए? The afraid is not the fear that devil come and you are afraid. Not that ये kind नहीं of कि fear. शैतान को देख के जो डर लगता है वो नहीं, The afraid is that वो डर था the stranger, कि जो अजनबी व्यक्ति because है, the people that you never meet, किसी व्यक्ति से अगर आप मिले ही नहीं, when they come to your house, वो अचानक से आपके घर पे आए, knock your house, खटखटा or दे, just appear to you, वे सामने से you खड़ा होता है, never meet the आप person. कभी नहीं मिले उससे, What is your reaction? आपका रिएक्शन कैसा होगा? कहाँ से आया? ये तो पहले से नहीं मिलता. So that is how the Bible talk about. तो बाइबल यही बताती है। Then always the angel said, "Don't be afraid. तो स्वर्गदूत हमेशा बोलता है कि डरो मत, I am bringing good news." मैं तुम्हारे लिए अच्छा सुसमाचार But लाऊंगा। how the Satan threatening us? पर शैतान क्या करता है? Satan will never say, शैतान कभी "Don't नहीं be कहता afraid." कि डरो मत। But Satan present completely different. पर शैतान की उपस्थिति बिल्कुल अलग होती है। God present completely different. परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल अलग। God present, परमेश्वर की there उपस्थिति is a peace शांति होती है, and there is a joy. एक आनंद होता The है, joy that you can't able to explain. ऐसा आनंद जिसको आप बता नहीं The सकते, peace that you can't able to जो explain. शांति आप दिखा नहीं सकते। But the way the Satan present is लेकिन there, शैतान की उपस्थिति आती you है, will be frustrated. आप परेशान हो You जाते don't know and no peace, हैं, आपको शांति no नहीं मिलती है, joy, आनंद and नहीं you will होता। ask yourself, अपने आप से what पूछो, is happening here? क्या हो रहा है? Inside empty, मेरे अंदर no दिखाई peace, पड़ती हुई no शांति क्यों नहीं joy. है? Then you should know that that is the तो आपको पता devil. होना चाहिए कि शैतान की उपस्थिति, Then you need to cast out. तो आपको उसको निकालने की जरूरत So है। now Mary was engaged, तब मरियम की मंगनी हो गई and then now he was found by the Holy Spirit he was pregnant. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो गई। Then Joseph come to know. तब यूसुफ को पता लग गया। Joseph was a righteous man. तो यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। Then Joseph was asking a question as a man. तो जो यूसुफ था उसने एक प्रश्न पूछा Then he said, "How come? Whose side is this woman?" कि ये बच्चा किसका बच्चा है इस औरत के पेट में? Then he don't want to public announce. अब वो पब्लिकली सबके सामने नहीं बताना And चाहते Jew culture, और यहूदी even though they are not yet married, अभी तक उनकी शादी but engagement
पक्का that this person is already going to be पर married. अगर किसी से मंगनी हो जाती है मतलब पक्का है, सबको पता होता है कि इसकी शादी होने That's why the Bible need to say that they are not yet married. इसे बाइबल में लिखा है कि उनकी शादी तो But नहीं, Joseph come to found out that Mary has conceived a child. लेकिन यूसुफ को पता लग गया कि मरियम के तो बच्चा है। For example, our church, the 29, the brother Zoe is going to be married. So now his wife name also Mary. So now Mary is saying, what is it in West Bengal? If pregnant, the baby will, what will think? ये कौन का बच्चा है? मैं तो शादी नहीं करेगा, मम्मी जाके शादी का तोड़ दो, है ना? घबरा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, पुलिस को वो कौन का बच्चा है? मैं तो उसका नहीं मिलता, उसका साथ नहीं सोया, ये कैसे आया? है ना? So Joseph was happening like that. Mary was engaged and now pregnancy started. अब मरियम की मंगनी तो हुई भी है लेकिन वो गर्भवती हो गई। Then Joseph was worried. तो यूसुफ को चिंता हो गई, What child is this? किसका बच्चा है ये? And if somebody child, और किसी का बच्चा है, then this woman is somebody wife. इसका मतलब ये तो ये लड़की किसी और की पत्नी हो, I need to divorce. मुझे तलाक करना पड़ेगा। No, they are married, but Jew culture engagement already there. तब अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन मंगनी की वजह से मंगनी का भी तलाक करना पड़ता है वहाँ पर। So Joseph said, I don't want to bring public, तो यूसुफ ने सोचा मुझे मरियम को पब्लिकली शर्मिंदा नहीं करना and then I need to secretly divorce this और मुझे woman. चुपचाप इसको तलाक देना। He was so worried, वो डर गया, cannot tell the people. लोगों को नहीं बताया। And Joseph also fearing God. और यूसुफ भी परमेश्वर के भय में The Bible था। says Joseph is a righteous बाइबल man. बताती है यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। So he don't want the public ashamed to तो marry. इसलिए वो मरियम को शर्मिंदा समाज के सामने नहीं करना He चाहता। want to finish secretly this problem. वो चाह रहा था कि सीक्रेटली चुपचाप If Mary pregnant to somebody life, अगर मरियम प्रेग्नेंट हो गई suppose somebody man, किसी और से, then Joseph said, let them marry. तो यूसुफ सोचे कि ठीक है इसकी I don't want to go and fight. इसकी उससे शादी हो जाए, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, And I just divorce. मैं तलाक दे दूंगा। Then he was thinking, and he maybe in that situation, think, Joseph may not able to eat. हो सकता है यूसुफ खाना भी ना खा पा रहा हो, Or he cannot able to confront Mary also. मरियम के सामने आना पा रहा हो, Or he cannot able to tell to Mary parent also. मरियम के पापा मम्मी से बात नहीं कर पा He रहे हो, was started worried. उन चिंता होने लग गई। Then what do? तो क्या हुआ? No need to get the information. तो जानकारी मिलने की जरूरत नहीं थी। Joseph was, talking to God. तो यूसुफ ने प्रभु से बात करी What can I do? कि मैं क्या करूं? I need to secretly divorce this मुझे man. क्या करूं? इसको चुपचाप मुझे इसको Then divorce he करना sleep. पड़ेगा। Then he sleep. तब उसने क्या सोचता Then the angel come to Joseph. जब वो सो गया तो परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में आया। Read it 19. Then Joseph, her husband, being a just a man, not wanted her to make her a public example. See, you can see the character of Joseph. And the public example was minded to put her away secretly. Verse 20. But with a thought about this thing, behold, the angel of the Lord appeared to him in dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to your Mary your wife, for that which is conceived in her is the Holy Spirit. तो यहाँ लिखा है मत्ती पहले के 19वें वचन में, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Amen. So now Joseph was worried and he could not able to tell, he could not able to confront it. अब यूसुफ इतना परेशान था, लोगों से बात नहीं कर पाता, Then खा पी the नहीं angel पाता। comes. तो स्वर्गदूत आया Beautiful, good news, the angel bring. और सपने में स्वर्गदूत ने उसको एक संदेश दिया The Holy Spirit, the angel, कि वो स्वर्गदूत come to Joseph. यूसुफ के पास आया। Joseph, यूसुफ से कहा don't be afraid. कि तू डर मत, The woman that you are engaged जिस औरत से तेरी मंगनी हुई है is nobody man son, child the pregnancy. वो गर्भवती तो हुई ही किसी आदमी से नहीं हुई है, There is no one. कोई नहीं है, Don't be afraid. डर मत। Mary is your wife. मरियम तेरी पत्नी है, He didn't have any other relationship. उसका कोई भी और रिश्ता नाता नहीं है, Their parents never arranged for any other माता man. पिता ने किसी और से शादी नहीं Mary की, didn't love to any woman. मरियम किसी और आदमी से प्यार नहीं Mary करती, didn't have any relationship. कोई रिश्ता
Joseph that Mary is a really wife. तो स्वर्गदूत ने ये बोला यूसुफ को कि मरियम तेरी पत्नी है और उसको पत्नी So ले ले। nobody he didn't have any relationship outside. तो स्वर्गदूत ने बोला कि यूसुफ को ये बताया कि मरियम का कोई भी बाहर संबंध नहीं है। Don't be afraid. डरने की जरूरत The नहीं है। child that she is conceived जो बच्चा उसके पेट में है belongs to God, वो परमेश्वर का है, the sons of the living वो God, परमेश्वर का बेटा है, the sons of the Most High God. सबसे महान परमेश्वर का बेटा When है। you read in Luke, Mark, you will see that Jesus Christ is the Most High God. बाइबल में अगर देखिए लूका और मरकुस में लिखा है कि परमेश्वर यीशु में सबसे महान परमेश्वर है And she is conceived by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आई, No any other man. किसी और के द्वारा नहीं। So don't be afraid. तो डरना नहीं है। Take that woman as a wife. तो उस औरत को अपनी पत्नी लेने से डरना नहीं है। But the Holy Spirit angel said very beautiful thing. पर स्वर्गदूत ने एक बहुत सुंदर चीज कही। Then what he said? उसने क्या कहा? So now the 21 is my topic. So verse 21. And she will bring forth a son, and she will call his name Jesus, for he will save his people from their sin. तो 21 में लिखा है वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Mark another one. Mark it. उसे मार्क कर लीजिए अपने बाइबल में। Remember. See the Holy Spirit tells to Joseph. तो पवित्र आत्मा ने क्या The बताया? angel to तो Joseph. स्वर्गदूत ने यूसुफ को क्या बताया? The Mary that who is conceiving कि मरियम के पेट में जो बच्चा is है the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है And he will save his people from sin. और वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। So this is my topic. He will save his, Jesus Christ. He will save our sin, and he will save our sin from कि all यीशु kinds of मसीह sin. हमें हमारे पापों से उद्धार करेगा। He will save us from our वो sin. हमें हमारे पापों से बचाएगा। But the important thing is that पर सबसे जरूरी चीज क्या है? 21. He said 21 में he will save his people from sin. वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। What kind of people? किस तरह के लोगों को? God said, does Jesus Christ, the Mary that conceived, कि मरियम ने जो गर्भ धारण किया he will bring into this world, वो इस दुनिया में आएगा and he will save his people. वो अपने लोगों को बचाएगा। So what kind of people? किस तरीके के लोगों को? Just see the English grammar. अगर आप इंग्लिश में पढ़ें English grammar. इंग्लिश The ग्रामर Bible say Jesus Christ will save his people from sin. उसमें लिखा है कि यीशु मसीह अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा। Bible didn't say that Jesus Christ will save the whole world. ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह सब लोगों को पाप से बचाएगा। But Jesus Christ, the Son that who is going to come, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र आने वाला है he will save his people from sin. वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा। His people. अपने लोगों को। Then you are thinking that we are not his people. हम सोचेंगे अरे अपने लोग मतलब क्या? हम तो नहीं अपने लोग। Jesus is a Jews. यीशु मसीह तो यहूदी था। But who is his people? तो यहूदी लोग ही उनके लोग होंगे। Then his people is that. लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसके लोग, The Bible says, बाइबल कहती है God so loved the कि world. परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम John किया। 3:16. यूहन्ना He 3:16 gave only begotten Son. अपने इकलौते बेटे को दिया। Whoever believes, जो भी विश्वास करेगा they have the eternal life. वो अनंत जीवन को पाएगा। Whoever does not believe, जो विश्वास नहीं करेगा they will be perished. वो नष्ट हो So जाएगा। whoever believes, तो जो भी विश्वास करेगा they will have eternal life. उन्हें अनंत जीवन। So whoever तो जो भी believes, विश्वास करेगा Jesus Christ यीशु is मसीह going to save this people. यीशु मसीह उन्हीं को बचाएगा। That is his people. ये उनके लोग हैं। Whoever believes in Jesus जो Christ, भी यीशु मसीह विश्वास करता है God will save from sin. परमेश्वर उसे पापों से बचाता है। God will not save the whole people that who is not believe. जो लोग दुनिया में जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते परमेश्वर उन्हें नहीं बचाएगा They are not his people. क्योंकि वो उनके लोग नहीं है। God will not save the people who didn't believe in him. जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते नहीं है परमेश्वर उन्हें बचाएगा भी नहीं। Even though God created, परमेश्वर ने हाँ उन्हें बनाया तो है। God giving a choice. परमेश्वर ने उनको चुनाव भी तो God दिया। is not a remote control. प्रभु आपको जबरदस्ती रिमोट से नहीं God चलाता। can control your life. प्रभु के जीवन को कंट्रोल नहीं करता। It is your choice. ये आपकी मर्जी है। If you believe in him, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं he will save
from your sin. तो वो आपके पापों से आपको छुड़ाएगा Then you become His people. और तब आप उसके लोग बन जाएंगे। But if you didn't believe, लेकिन अगर विश्वास you नहीं want to करेंगे, believe in Allah, आप अल्लाह में विश्वास you want to करते हैं, believe in God and आप goddesses, देवी देवताओं में विश्वास करना then चाहते you हैं, are not His people. तो आप परमेश्वर के अपने लोग नहीं हुए, Then you are not saved from sin. तो आप पाप से बचे ही नहीं And हैं। the sinner cannot enter to God's kingdom. पापी प्रभु के राज्य में नहीं जा But the सकता। person who believes in Jesus Christ, लेकिन वो व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, only God will save from their sin. परमेश्वर सिर्फ उन्हें ही उनके पापों से बचाता है। God come for everyone, परमेश्वर सबके लिए आया, but He will save the people who believe. लेकिन वो उन्हीं लोगों को बचाता है जो विश्वास करते हैं। For example, Jesus entered in this house. जैसे अगर यीशु मसीह इस घर में आ जाए, Some people will welcome, कई लोग उनका स्वागत करेंगे, some people doesn't want to welcome. कई लोग कहेंगे अरे कौन आ गया। God will never force. तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे। The person who welcome, जो स्वागत करेगा, the person who believe, जो विश्वास the करेगा, person who allow them enter to His life, जो पर यीशु मसीह को अपने जीवन में आने की अनुमति देगा, God will happily, प्रभु देगा उन्हें। God will happily परमेश्वर खुश होके enter to that person's life, उनके जीवन में आएगा and He will save from sin. और उन्हें पापों से छुड़ा लेगा। That is the particular verse that I'm talking here. यही वचन आज यहाँ So the person who believe in तो Christ, जो व्यक्ति विश्वास करता they है, become His people. वो उनके लोग बन जाता है। So now you believe in Jesus तो अगर Christ, आज आप यीशु विश्वास करते हैं, you are the sons and daughter of तो God. आप परमेश्वर के बेटा और बेटी The बन Bible जाते हैं। says we are under the Satan, तो बाइबल बताती है कि एक बार हम शैतान के हाथों में थे, but Jesus come into this world. लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में आए, We are not deserved at all. तो हमें कुछ भी हम इसके लायक तो नहीं थे। You are by our good work, हमारे अच्छे काम इतने अच्छे नहीं थे, our good deed हमारे अच्छे भले काम cannot save us. को हम बचा नहीं पाते। Everyone, हर कोई, the Bible says, बाइबल कहती है Genesis chapter 6 verse 5, उत्पत्ति 6:5 में everyone कि हर कोई from Adam to till now, आदम से लेके आज तक he is going to come. परमेश्वर तो आने वाला है, Our inclination, पर हमारी सोच, our thought, हमारी our सोच, mind हमारा are मन so evil, हर समय इतना बुरा है, no good at all, कुछ भी अच्छा नहीं है, no deserve good thing. उसमें कुछ भी अच्छी चीजें नहीं आ सकती, But by God's grace only, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही we are saved. हम बच जाते हैं। So now Jesus, the angel told to Joseph, तो स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, don't be afraid. तो डर मत, This child that who is pregnant, कि ये मरियम जिस बच्चे से गर्भवती है, he is going to come वो आएगा and he is going to save his people और from वो sin. आके अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। Then Joseph wake up. तो यूसुफ उठा, He may be long breathing. You see, all my doubt has come. तो यूसुफ के सारे शक खत्म हो गए। He was frustrated. पहले वो कितना परेशान He था, was worried. चिंता कर रहा था, Who Mary is pregnant? Whose child is this? जिससे शादी हो गई, कि उसका बच्चा है, क्यों ऐसे हो गया? No answer to his question. कोई जवाब नहीं आ रहा उसके He प्रश्न cannot का। go to public and tell वो him. पब्लिक के पास नहीं जा He cannot सकता। ask to वो Mary. मरियम से भी नहीं पूछ His सकता। heart was full. उसका दिल कितना भारी हो रहा Then हो। now when the angel give the answer to his तो question, जब स्वर्गदूत ने उसके प्रश्न का उत्तर उसके मुंह पे दे दिया, he wake up. तो यूसुफ उठा, Oh, now I got the solution. अब मुझे मिल गया है वो उत्तर। Yes, हाँ, Mary pregnant is from Holy Spirit. इसका मतलब मरियम जो गर्भवती हुई है पवित्र आत्मा से हुई Oh, है। the Isaiah prophesied इसका about. मतलब यही तो है वो बच्चे की Oh, the Micah prophesied मीका about. ने भी बोला था इसके बारे Oh, में, Hosea prophesied about. होशे ने भी बोला था There will be a Messiah will कि come. मसीहा आएगा Virgin will be conceived. और एक कुंवारी He will be the गर्भवती Prince of और वो Peace. शांति का He will be the राजा save his people. अपने लोगों को बचाएगा। So now Joseph realized and he understands the Old Testament. और तब यूसुफ को पुराने नियम की भविष्यवाणी समझ में आई। He understands the word of वो God. समझ गया परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। He got the उसको peace, सफलता मिली, उसको शांति मिली, relief, बहुत रिलीफ मिला and he wake up, और वो उठा, took birth, नहाया होगा। dressed himself. The Bible says बाइबल कहती है he went to Mary's वो house. मरियम के घर गया He took the Mary और मरियम को ले लिया, and bring to his house. अपने घर लेकर आ गया। Read verse 22. 22 यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो जाए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने वहां ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। Amen. आमीन। Joseph wake up. यूसुफ उठा, He didn't tell anybody. उसने किसी को नहीं बताया, He went, पर वो गया, took the Mary.
मरियम को अपने पति Bring लिया, to his house. अपने घर लाया। Until the child was born, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, he didn't sleep to Mary. वो मरियम के साथ सोया भी नहीं। He kept as a for protection. उसने मरियम को तक सुरक्षित रखा था। Why he did like that? क्यों किया ऐसा? Why? क्यों? There is a big question. एक बड़ा प्रश्न है। I will give you the answer. पास्टर के मैं जवाब दूंगी। See a woman एक औरत without husband बिना पति के having a pregnant, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए, staying in their home. अपने घर में रहती रहे, What the society will say? क्या समाज बोलेगा उसके बारे में? I am pregnant. पास्टर अगर प्रेग्नेंट हो जाए, I didn't have a husband. पास्टर का पति नहीं है, What do you think? लोग क्या सोचेंगे? पास्टर एक बहुत खराब पास्टर है, पापी पास्टर है, हम तो चर्च नहीं जाएगा, पास्टर प्रस्तुति करते हैं, हस्बैंड मिल के रास्ता में मिल के प्रेग्नेंट हो गए, हम लोग का पास्टर क्या? So the society will talk about like that. तो समाज तो इस तरीके की ही बात करेगा। Think that I am a wicked pastor. आप सोचिए एक बुरी पास्टर, I am a very unclean pastor. बहुत अशुद्ध पास्टर है। So said no. तो यूसुफ ने क्या सोचा? The Mary is going to talk like that. अरे मरियम के बारे में भी ऐसी बातें होगी। Without Mary, बिना शादी के, just Mary was pregnant in her house. वो तो प्रेग्नेंट हो गई। Even though Joseph was engaged, यूसुफ की मंगनी तो but they are not yet married. पर शादी तो नहीं हुई ना। But Jesus, how the Mary was pregnant? तो मरियम गर्भवती हो कैसे गई? So Joseph didn't want to spoil Mary. तो यूसुफ मरियम का नाम खराब नहीं करना चाह रहा। But even though he didn't sleep with Mary, लेकिन अगर वो अभी तक मरियम में सोया नहीं था, he bring to her house वो अपने घर तो लाया। the society, the people, the parents, the relative, the village, the colony, the gully. They know that yes, Mary is the wife of Joseph. चाहे उन्होंने भी साथ में कोई रिश्ता ना बनाया, लेकिन जब यूसुफ मरियम को अपने घर ले आया तो समाज की नजर में, परिवार की नजर So में even though you're pregnant, nobody will not speak about it. और उस समय अगर मरियम गर्भवती दिखेगी सबको तो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। And Mary name will not spoil. और मरियम का नाम भी खराब And नहीं होगा that child will not be spoiled. और वो बच्चा भी खराब See नहीं how होगा। the God is protected. आप देखिए परमेश्वर ने कैसे सुरक्षा दी, God preserved them. परमेश्वर ने संभाला। All these things are plans by ये God. सारी की सारी योजना परमेश्वर And की very beautiful thing. और एक बहुत सुंदर चीज, Before Jesus Christ come, यीशु मसीह के आने से पहले already gender also announced. उनका जेंडर पहले ही बता दिया गया था, मतलब उनका लिंग क्या होगा। See, when people pregnant, जब लोग प्रेग्नेंट होते they हैं, want to know the gender. हर कोई जानता है कि बेटा होगी बेटी होगी, Woman or man. बेटा होगी बेटी होगी। Before Mary was pregnant, अब मरियम के पैदा होने से पहले, all the prophets in the Old Testament, भविष्यवाणियों में ही they have already announced the gender also. पहले से ही बता दिया था कि बेटा ही होगा, Name also. उसका नाम भी यीशु होगा। So Jesus is completely different from other birth. इसका मतलब बाकी जो बच्चे पैदा होते हैं उससे यीशु का जन्म बहुत अलग होगा। In the history of the world, दुनिया के इतिहास में there is no one like that. कोई भी ऐसा नहीं था। Nobody announced, nobody tell the gender. किसी के भी आने से पहले भविष्यवाणियां नहीं हुई या पहले से जेंडर नहीं बताया गया। Before Jesus Christ come, तो यीशु के आने से पहले, his name to be called Jesus. लेकिन यीशु के आने से पहले ही बोल दिया था कि इसका नाम यीशु ही What होगा। is the Jesus? यीशु का मतलब क्या है? Jesus means यीशु का अर्थ है salvation. उद्धार। Jesus means यीशु का मतलब है salvation. उद्धार। Christ, और यीशु मसीह मतलब क्राइस्ट का मतलब है Jesus Christ. यीशु मसीह। You should know the meaning. आपको पता होना चाहिए कि यीशु और मसीह इन दोनों का मतलब Jesus यीशु in the Hebrew, इब्रानी भाषा में in the Greek, या फिर यूनानी भाषा में a Hebrew word, इब्रानी शब्द Joshua. जोशुआ बोलते हैं। Joshua means save जोशुआ मतलब बचाया or salvation. या उद्धार। And then also in the Greek, और ग्रीक यूनानी भाषा में Jehovah. यहोवा। So they mix together, तो यहोवा और यहोशू को इकट्ठा मिला दिया जोशुआ they को, become Jesus Christ. तो जोशुआ और यहोवा को मिला के यीशु बना दिया। So now Jesus Christ means, तो यीशु का मतलब है, Jesus means salvation. यीशु मतलब उद्धार, Christ means anointed. और क्रिस्ट मतलब कि जो अभिषिक्त हो, He was anointed जो एक ऐसा जो अभिषिक्त हो to save our life, हमारे जीवन को बचाने के to लिए, save the sinner. पापियों को बचाने के लिए। So now you should call his name Jesus. तो यहाँ पहले से ही लिखा गया था कि उसका नाम यीशु रखना। So before I was born, पास्टर के पैदा होने से पहले my name never announced. किसी ने पहले नहीं बोला इनका नाम क्या रखना है। Before you were born, आपके पैदा होने से my पहले name never announced. आपके नाम के, Your parent doesn't know you are sons and daughter. आपके पैदा होने से पहले किसी को नहीं पता आप लड़का पैदा हुआ है लड़की पैदा हुई अपनी मम्मी के। But Jesus Christ is. लेकिन यीशु मसीह के समय में All the Old Testament,
दिया था कि बेटा ही So होगा, no need to go to doctor. डॉक्टर के पास जाने की To जरूरत say, नहीं है कि चेक करने के लिए Sons and कि daughter बेटा हो कि बेटी होगी, already know. पहले से ही बोल Mary already know. मरियम पहले ही जानती थी, Before she was conceived. डिलीवरी होने से भी You पहले will conceive a son. कि तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, Come from Holy Spirit. पवित्र आत्मा से You need आएगा, to call him Jesus तो Christ. उसका नाम यीशु रखना है। See, Jesus got everything is miracle. आप ये देखिए यीशु मसीह के जन्म में सब चीज चमत्कार से हुई है, Before he was coming, उनके आने से पहले already know the gender, पहले से पता है कि वो already know the name. पहले नाम भी पता है, That means इसका मतलब Jesus is. यीशु मसीह He is himself is a God. वो खुद परमेश्वर है, He himself is a God. वो खुद परमेश्वर है। So he was known, and then Joseph took Jesus and Mary. और यूसुफ ने मरियम को ले लिया, The Bible says in verse 25-24, और 25-24 में until Jesus Christ was delivered. जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ, Joseph kept in her house. यीशु ने मरियम को अपने घर में He तो रखा, played the role of the husband, एक पति का सारे कर्तव्य भी निभाया, but never come near to her पर कभी मरियम के पास नहीं आता था until the child was जब born. तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए, Because the Holy Spirit has already क्योंकि said. पवित्र आत्मा ने कह दिया था। That is the things that now I want to tell is that तो पास्टर कह रहे हैं, मैं आपको ये चीज बताना the चाहती हूँ purpose of Jesus Christ coming कि to this यीशु world मसीह के दुनिया में आने का मकसद to save you and I आपको और मुझे बचाने के लिए, from our sin. हमारे पापों से। If Jesus Christ is not अगर coming, यीशु मसीह नहीं आते, so that is who is the Jesus Christ तो यीशु मसीह कौन है? and who is the he is the God. वो प्रभु है। In the beginning, शुरुआत में John chapter 1, यूहन्ना 1 में in the beginning क्या लिखा है? शुरुआत में there is a word. वचन था। John chapter 1:14, यूहन्ना 1:14 में क्या that लिखा है? word वो वचन become flesh, देहधारी हो गया, dwell among us. हमारे बीच में रहा। So the God the Almighty, तो वो परमेश्वर जो महान है, He Himself वो खुद become a man. वो इंसान बन के दुनिया में आया। See, one different thing is that पर एक और जो अलग चीज है, Jesus also 9 months. यीशु मसीह 9 महीने के थे, You also 9 months. आप भी 9 महीने पे Jesus also pregnant with the Mary with the painful, और मरियम भी यीशु को अपने गर्भ में रखा 9 with महीने। the stomach pain, everything what the mother go through. पेट का दर्द जो मम्मियों को होता है उसको भी हुआ होगा। Jesus also delivered. यीशु को भी जब डिलीवरी के Jesus also brought up just like you and I. जैसे आप उन्हें बड़े हुए वैसे ही यीशु मसीह भी बड़े हुए। Jesus didn't come and it's just a magic and like that and यीशु never. मसीह ये नहीं परमेश्वर का अचानक से ऐसे आ गए। Jesus was delivered. यीशु मसीह की डिलीवरी हुई He was taken care as a baby. और एक 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, 2 years. और बच्चे की छोटे बच्चे की तरह 1 महीना 2 महीना 4 महीना Started 1 साल, 2 speaking, साल, started उन्हें talking. बड़ा करना शुरू किया, बोलना शुरू हुआ। In the midst of that, she might also going through pain, sorrow, sickness. हो सकता है इसके बीच में उसके जीवन में बीमारियां आई हो, परेशानियां आई हो, See, Jesus was when he was alive. लेकिन यीशु जब बच्चे थे, Because of Jesus. यीशु मसीह की वजह When से you read in the book of Matthew chapter 2, I will not go into that. हम इसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम मत्ती 2 पढ़ेंगे। Herod the Great. तो हेरोदेस राजा, When Jesus was delivered, जब यीशु मसीह का the जन्म हुआ, wise men come and ask them, तो समझदार व्यक्ति 3 चरवाहे the थे king of the Messiah कि जो मसीहा का राजा was है, born. वो पैदा हुआ है। When is that? कहाँ है वो? Then Joseph told, and the Herod told. तो हेरोदेस ने क्या सोचा? He was afraid. अरे I am the Herod. मैं हूँ ना राजा, तो I am the king. मैं राजा हूँ, Who is going to be born तो again? अब कौन सा पैदा होने वाला है? Then he didn't say anything to the wise men. तो उस राजा ने उस समय चरवाहों से कुछ नहीं बोला, But he told the wise men, if you found Messiah, लेकिन उन्होंने बोला उन 3 चरवाहों से राजा ने कि अगर तुम्हें बच्चा मिल जाए you tell me. तो वापस आके I will मुझे also बताना, go and worship. मैं भी करके आराधना करूंगा। They never turned again. पर वो वापस नहीं The आए, angel told them not to go back. क्योंकि स्वर्गदूतों ने कह दिया कि अब वापस मत So they जाओ, went back. तो वापस गए। Then Joseph, the Herod was waiting for the news अब हेरोदेस सोच रहा, अरे कोई खबर आएगी, कोई and खबर sent आएगी, all the soldiers सारे के सारे सैनिकों को भेज दो to search for the Messiah. कि ढूंढो बच्चा पैदा कहाँ हुआ आखिर। They didn't come, no वो news. नहीं ढूंढ पाए। Then what the Herod did? तो क्या किया हेरोदेस ने? He ordered तो हेरोदेस ने all the 2-year son हेरोदेस ने एक चीज बोली, सारे के सारे राज्य में जितने 2 साल और 2 साल से छोटे बच्चे हैं, cut their neck उन्हें गला काट के मार दो। because he can't able to find Jesus क्योंकि Christ. वो कह रहे थे एक बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहा, सबको मार दूंगा, इन सबके बीच में कहीं तो So that Herod think that Jesus Christ was dead, including them. तो हेरोदेस को होता है कि अगर सारे बच्चे मरवाऊंगा तो जो उद्धारकर्ता पैदा हुआ है ना मसीहा, वो भी मर जाएगा। But angel told Joseph, पर स्वर्गदूत
ने यूसुफ से क्या बोला Run कि भागो यहाँ से, to Egypt. जब जाओ मिस्र जाओ। So in the middle of the night, और इसमें आधी रात के समय में, that means so the 2-year child. इसका मतलब ये 2 साल के बच्चे, That means Jesus is already 2 years. इसका मतलब यीशु मसीह उस समय 2 साल के हो चुके थे। The Herod cannot get the news. अब हेरोद को कोई खबर वापस ही नहीं आ रही। So now Joseph told them to, angel told them to go and until the Herod died, you stay here in Egypt. पहले तो स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला कि जब तक राजा नहीं मरता और वो सारे बच्चों को मार रहा है बार-बार, तो तुम यीशु को लेके मिस्र भाग जाओ। And they went there. और वो वहाँ In the चले middle गए of the night, और आधी रात को चले गए। in that night, और उस आधी रात में Bethlehem, बेथलेहम में all the one side 2-year child कि वो सारे 2 साल से छोटे बच्चे were killed. वो सबको मार गए। Parents were crying. सारे माता पिता रो There रहे। was some Micah saying, मीका में ये भी लिखा हुआ है in the Bethlehem, कि बेथलेहम they में were weeping for their children. सारी माताओं के रोने की आवाज़ सुनाई देगी। The whole people with the family were crying. तो जिस भी वहाँ पे सारे के सारे परिवार वाले रोएंगे। See, from the sin from the beginning, आप देखिए शुरुआत से Satan planned to destroy Jesus शैतान ने Christ, हमेशा कोशिश करी यीशु not to को मारने की, fulfill the purpose of God, ताकि परमेश्वर की योजनाएं पूरी ना हो but पाए। God protect them. लेकिन परमेश्वर ने बचा के रखा And they said, और वो बच गए। so Herod thought that Jesus was dying, including them. तो उन्होंने हेरोद ने सोचा सारे बच्चे मर गए तो यीशु भी मर गया होगा, But they cannot able to destroy the plans of पर God. उन्हें मार नहीं पाया वो। So now today, the Jesus Christ, the Christmas that we are going to तो जैसे celebrate, अब हम क्रिसमस का दिन मनाने वाले हैं, Jesus was born यीशु मसीह का जन्म हुआ to save his people from sin. अपने लोगों को बचाने के लिए और पाप से बचाने। Because we all are about to death. क्योंकि बाइबल बताती है हमारी पापों की वजह से हम सभी नरक जाने की We योग्य हैं। are deserved to death. हम सबकी मृत्यु हो जानी चाहिए And because of our sins. हमारे पापों की वजह से। Nobody is not righteous. कोई भी धर्मी नहीं है। So that's why Jesus come and he come to save his तो people. यीशु मसीह क्यों आए? अपने लोगों को पाप से छुड़ाने के So लिए। what is a save? तो क्या है? Save means preserve. बचाना मतलब संभाल के रखना। So God want to preserve his तो people परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखना from चाहता है। hell नरक से and from the Satan. और शैतान के हाथों से। That is why he come. और इसलिए यीशु मसीह आए। So he come to preserve his people, तो यीशु मसीह अपने लोगों को संभालने not के to लिए। destroy by Satan. ये नहीं कि लोगों को नष्ट कर दे शैतान। So to save his people means the people who believe in Christ, तो जो लोग यीशु मसीह विश्वास करते हैं, they got the salvation उन्हें उद्धार मिलता है and your sins are forgiven. और आपके पापों की क्षमा मिल जाती But the people who didn't believe, है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह विश्वास they नहीं are not करते, his people, वो उनके लोग नहीं हैं and still they are under the और bondage. इसलिए वो बंधनों में बोझ में आज भी है। And the Bible says, the Romans chapter 6 verse 23, और रोमियो के 6:23 में क्या लिखा for है? the wages of sin is death, कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु but है। the free gift of God is eternal पर life परमेश्वर का मुफ्त का तोहफा क्या है? अनंत जीवन in Christ our Lord Jesus. मसीह में। So the wages of sin is death. तो मतलब आपके पाप की मजदूरी, पाप के इनकम क्या है? Death। So our wages of sin, तो हमारे पाप की मजदूरी, you are dead. तो क्या होगा? आप मर जाएंगे एक बार। That is why Jesus come. और इसीलिए ही तो यीशु मसीह आए। Because of our sins, हमारे पापों the की वजह से। wages are बढ़ते रहते क्या हो रहा है? हमारी कमाई बढ़ती जा रही है, पापों की कमाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही So है। we are dead. हम मर चुके हैं अंदर। So God come तो परमेश्वर आए without any payment, बिना किसी पैसे लिए by His grace. और अपने अनुग्रह से He offered Himself उसने अपने आप को दे दिया because He loved you. कि उसने आपसे प्रेम किया। No price, कोई भी पैसा नहीं लिया, no penalty, कोई पेनल्टी नहीं, nothing. कुछ भी नहीं He किया। loved you so much. उसने आपसे इतना प्रेम किया And your sins, your wages are death. और आपके क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। That is why He come और इसलिए यीशु मसीह आए to save your life. आपके और मेरे जीवन को बचाने के लिए। And His gift और उनका तोहफा is eternal life. वो है अनंत जीवन। That is a free gift. ये प्रभु ने मुफ्त में दिया है आपको। No cost, nothing. इसके लिए कोई पैसे नहीं खर्चने। But the cost is there लेकिन क्या करना है फिर? to believe, विश्वास करना, faith, विश्वास करना, trust. भरोसा रखना है Then you will receive that और free gift. तभी आप उस फ्री के तोहफे को पा पाएंगे। But if you didn't believe, अगर आप विश्वास ही नहीं करते, you will not get it. आप नहीं पाएंगे। So you will be dead in your sin. तो आप अपने पाप में रहते ही मर जाएंगे। And the Ephesians chapter 2 verse 1 to 7. और इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 के 7 में We लिखा है all are dead because of our sin. कि हम सब तो अपने पाप की वजह से मरे हुए थे, लेकिन Christ made us alive पर परमेश्वर ने हमें जिंदा किया है because of His grace. अपने अनुग्रह से। So when you read in Ephesians अगर आप इफिसियों की किताब पढ़ते 2 1 to 7, we all are dead because of our sin.
But by the grace of Jesus Christ, पर यीशु मसीह के अनुग्रह से, by the mercy of Jesus Christ, परमेश्वर की दया से we are saved. हम सब बच जाते हैं, Those who believe. जो विश्वास करते हैं। Amen. आमेन। God is good. All the time। And Romans chapter 5 verse 9. और रोमियो के 5:9 में भी लिखा है, Therefore, इसलिए we have now justified by His blood, तो हम यीशु मसीह के लहू से न्याय ठहरे हैं, but more shall be saved by Him from the wrath of God. और हमें परमेश्वर की आग से बचाया गया। So now, by the grace of तो God, परमेश्वर के अनुग्रह से those who believe in Christ, जो प्रभु विश्वास the करते हैं, blood of Jesus तो Christ, यीशु मसीह का लहू are saved from the wrath of God. वो उन्हें प्रभु की आग से बचाता है। See, God is the Holy God. परमेश्वर पवित्र है, Then God is a good God. परमेश्वर अच्छा भला Then परमेश्वर। how God can angry? तो परमेश्वर गुस्सा कैसे हो सकता है? But God is the God of justice. पर परमेश्वर वो है जो न्याय का परमेश्वर है, He is not the God of injustice. वो ऐसा नहीं है जो न्याय नहीं करता। So He don't want sin. तो परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है, That He is a justice God. He can't able to tolerate sin. वो तो एक न्यायाधीश के समान कभी पाप को नहीं सहन करता। So the people who didn't believe तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं the sin पापों पर that they have, जो उनके जीवन में the है, wrath of God परमेश्वर की आग will come upon them. उनके ऊपर गिरेगी There will be a judgment. और उनका भी न्याय But होगा। those who believe, लेकिन जो विश्वास करते they हैं are saved from the wrath of वो God. बच जाएंगे परमेश्वर की आग से। So we all, those who believe, they are saved from the wrath of God. और इसलिए जो बच जाते हैं परमेश्वर की आग से भी बच जाते हैं। So if you believe in Christ, अगर आप मसीह में विश्वास you करते are हैं, saved from hell. आप नरक से बच चुके हैं, You are saved from your sin. अपने पापों से छुटकारा You may पा be चुके हैं। sinned so much. हाँ, हम सब ने बहुत सारे पाप किए हैं। Prostitute, lying, idol worship, sexual immorality, adultery, witchcraft, black magic, killing, murder, stealing, खून करना, चोरी करना, all kinds of things. ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं। But if you believe and come पर to God, अगर आप फिर भी विश्वास करके परमेश्वर के पास आते हो, if you repent अगर पश्चाताप करते हो and you are no longer doing it, और आप उन गलत कामों को और नहीं करते जा रहे, God forgive those sins. परमेश्वर उन पापों को माफ कर देता That है। is why the Bible says He come for His people to save from sin. तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यीशु मसीह आए अपने लोगों को पापों से छुड़वाने के लिए। So those people believe they are you and I saved from the wrath of God. तो इसलिए वो लोग बचे, हम लोग बचे, इसलिए परमेश्वर की आग से बच जाते हैं। So what does this matter to us? तो इससे हमें क्या फायदा होता है? The Bible says He come to save from sin and then also He come to save your life to give eternal life. तो यहाँ पे परमेश्वर के पापों से बचाने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए। Romans chapter 3 verse 24. रोमियो के 3:24 में For लिखा है all have sinned and fall the short of the glory of God. कि हर किसी ने पाप किया है और हर कोई परमेश्वर की महिमा से नीचे गिर गया है। So we all are sinned हम सब ने ही पाप किया है and fall the short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा हमारे लिए इसीलिए ही कम है। And no one is righteous. कोई भी धर्मी नहीं है। Romans chapter 3 verse 9 to 12. रोमियो 3:9-10 The Bible says nobody righteous. Read. बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं। Romans chapter 3, but I'm going to finish on Romans chapter 3 verse 19 to 12. रोमियो किताब 3 अध्याय 9 to 12, yes. 9 से लेकर 20 तक। Romans chapter 12 and Romans chapter 3 verse 9 to 12. रोमियो किताब 3 अध्याय Read. 9 to 20। Yeah, 9 to 12. 9 to 12। कोई धर्मी नहीं। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भला करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है। Amen. So the Bible said no one righteous. तो बाइबल के बताते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, No one seek God. कोई भी प्रभु को खोजता है, Nobody good. कोई भी अच्छा नहीं है। You might thinking that I'm good. हम सोच सकते हैं कि हम अच्छे हैं, You might thinking that I didn't do murder. हम सोच सकते हैं मैंने किसी खून तो नहीं You किया, might thinking that I didn't do idol worship. आप तो कह रहे हैं मैं मूर्ति पूजा भी नहीं किया, You might thinking that I didn't do sexual आप immorality. कह रहे हैं कि अरे मैंने आज तक व्यभिचार नहीं किया। But Bible says पर बाइबल के कहते हैं nobody is good. कोई भी अच्छा नहीं। If you didn't do, अगर आपने गलत काम नहीं also किया, your conscience, फिर भी हम अपने दिमाग से Your पाप करते हैं, mind, अपने मन your से पाप करते thought, हैं, अपनी सोच से your पाप करते हैं, imagination, आपकी कल्पनाओं से पाप so करते हैं। evil. कितनी बुरी है। So the Bible says बाइबल क्या कहती no है one righteous, कि कोई भी धर्मी नहीं है, no one understand, कोई भी नहीं समझता है no परमेश्वर, one seek God. कोई प्रभु को खोजता
सोचता नहीं No है, one good. कोई भला नहीं है। Even I say that I'm a good, पास्टर कहते मैं कहती हूँ मैं अच्छी हूँ, I'm wrong. पर हम भी गलत I am not good at all. हैं, अभी अच्छे नहीं है। That is why और इसलिए Jesus Christ comes यीशु मसीह दुनिया में आए to save you. हमें बचाने के लिए, Because we are not righteous. क्योंकि हम धर्मी नहीं हैं, We are not good at all. हम अच्छे नहीं हैं, We are not deserved at all. हम किसी चीज के लायक नहीं हैं। That is why और इसलिए Christmas means कि क्रिसमस का क्या मतलब Jesus come for the unrighteous कि people. यीशु मसीह अधर्मी लोगों के लिए आए, Jesus come for the sinner यीशु मसीह आए उन लोगों के लिए जो पापी हैं, to save his people. उनके जीवन को बचाने के लिए। But to save his them, पर उसके बाद you must believe लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज है आपको विश्वास करना and you must trust. और आपको भरोसा रखना। Last Bible, और आखिरी चीज James 2:10. याकूब 2:10, James chapter 2 verse 10. For whoever keep the whole law but fail in one point has become accountable for all. I am accountable for all the breaking of God's law. I need a savior. Everyone breaking all the God's law. We need someone to save us from our sin. From our sin and from the wrath of God. That is why Christmas means because Jesus come to save us. तो यहाँ पे लिखा है याकूब की किताब दूसरा अध्याय पेज नंबर 319, नया नियम पेज नंबर 319, 319 2:10, 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। Nobody obey God's law. कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलता, Nobody faithful in God's कोई law. भी परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है, Nobody doing the will of God. कोई परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहा है। That is why और इसलिए nobody cannot able to come to the throne of कोई grace. परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं आ सकता। That's why the God the Almighty, तो इसलिए सबसे महान परमेश्वर He don't want you to go to hell. वो नहीं चाहते कि हम नरक में He चले, don't want you to face the wrath of वो God. नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की आग को He don't want you to face the judgment of वो God. नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के न्याय को झेलें। That is why और इसलिए He come वो आए into this world. इस दुनिया में And He was और वो conceived by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा The God the Almighty, सबसे महान परमेश्वर He left the throne. उन्होंने अपने सिंहासन को छोड़ He दिया, left the power. अपने सामर्थ को He छोड़ left दिया, His authority. अपने अधिकार को He छोड़ दिया, left His glory. अपनी महिमा को He छोड़ दिया, left His kingdom. अपने राज्य को He छोड़ दिया, left His holiness. अपनी पवित्रताई को छोड़ And He दिया come into this और इस world. दुनिया में आ गए। The sinful world. इतनी गंदी The दुनिया, wicked world. बुरी दुनिया, The dirty world. एक गंदी दुनिया, The evil एक world. बुरी दुनिया, For whom? किसके लिए? For you हमारे लिए, and for me. आपके और मेरे लिए, To have a meaningful life. ताकि हमारा जीवन अच्छा होने पाए And to have a wonderful life. और एक अनंत जीवन, एक सुंदर जीवन होने पाए। So He come तो वो आए to save our life. हमें बचाने के लिए, That is the Christmas meaning. और इसी का मतलब है क्रिसमस। So when we celebrate Christmas, तो जब हम क्रिसमस मनाते हैं, Jesus is no more sign. अब यीशु मसीह को छोटे बच्चे की तरह नहीं है, He has come. वो आए He died on the cross और for वो us. क्रूस पे हमारे लिए मर गए He rose again. और वो दोबारा जिंदा हो He गए, conquered the dead. दोबारा मृत्यु पर Now जय He's पाई sitting in the throne of और अब God. परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन He पे is बैठे going to come हैं again और अब वो दोबारा आएंगे to take your life. आपके जीवन को ले जाने। So we are not celebrate the small baby. तो हम छोटे से बच्चे के जन्म को नहीं मना रहे We हैं, are celebrate हम मना रहे the हैं victory परमेश्वर की सफलता that we have. जो हमें मिली You है। are saved from your sin. आप अपने पापों से You are बच जाते saved हो, from the evil. आप सारी You बुराइयों are से saved बच from जाते हो, hell. सारे नरक से बच You are जाते हो, saved from the wrath of God. सारे शैतान की परमेश्वर की आग से बच जाते You हो, are saved from the judgment of God. परमेश्वर के न्याय से बच जाते हो And you are waiting for His coming और again. आप परमेश्वर के वापस आने का वेट कर रहे हो। Jesus Christ come यीशु मसीह आते हैं in the first time. सबसे पहली बार जब आए Nobody थे, know. कोई नहीं But जानता, the Bible says, और बाइबल now the second coming, अब दूसरी बार He is going to come जब again. यीशु मसीह दोबारा He आएंगे will come like a lion. वो एक शेर की तरह The आएंगे। Bible says, Bible कहती He will है, come for the people who believe in तो Christ. जो लोग पर वो विश्वास करते हैं वो उनके लिए दोबारा आएंगे And He will come for the judgment the people who are not believing. और जो लोग वो एक न्यायाधीश की तरह आएंगे जो लोग विश्वास And He will come for the people who are not believing and He want to put into hell. और जो लोग प्रभु विश्वास नहीं करते परमेश्वर उन्हें नरक में डाल And He will देता है। come for the people who believe and who are waiting for Him और वो लोग भी प्रभु में विश्वास करके प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं to reign together in His kingdom. ताकि हम परमेश्वर के राज्य में एक साथ वास करने Everlasting to पाएंगे everlasting. अनंत काल तक। That is God, वो है परमेश्वर who is going to come again. जो दुनिया में आने वाला है, Get ready for तो that, उसकी तैयारी कर ले to meet Jesus Christ. यीशु मसीह से मिलने So की। as you celebrate तो Christmas, जैसे आप क्रिसमस मना रहे हैं
believe तो विश्वास करें and trust भरोसा that रखें Jesus Christ come to save your कि life. परमेश्वर आपको और मुझे बचाने के लिए आए थे। Jesus didn't come to eat and drink. यीशु मसीह खाने पीने के लिए नहीं आए थे। Jesus didn't come for enjoyment of this यीशु world. मसीह दुनिया के मजे लेने के लिए भी नहीं आए थे। Jesus didn't come to bring sickness in this यीशु world. मसीह दुनिया में बीमारियां दुख देने के लिए नहीं आए Jesus थे। didn't come to bring your problem in this world. परमेश्वर इस दुनिया के अंदर परेशानी को बढ़ाने नहीं But we are in problem. पर फिर भी हम परेशानी में We क्यों need हैं? a savior. हमें उद्धार करना We चाहिए। need a somebody come and save and heal and deliver and provide for us. हमें कोई चाहिए जो आके हमें सुरक्षा करे, चंगाई दे, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे। That is why he come और इसलिए यीशु मसीह आए, to give you healing, आपको चंगाई देने, to give you a way, आपको रास्ता दिखाने के लिए, to give to have salvation, ताकि हम उद्धार पाने to पाए save from Satan, और हम शैतान के हाथों से बच to जाए, save from problem, हमारी परेशानी से बच जाए, to save from difficulties, हर एक मुश्किल से बच जाए, to heal all kinds of broken heart, हर तरह के टूटे दिल को प्रभु ठीक कर दे to give you question you are asking और question. आपके जो प्रश्न है प्रभु के जवाब आपको दे दे। So when you have Jesus, तो जब आपके पास यीशु होता है, you have everything. आपके पास सब कुछ होता है, You have answer, आपके जवाब होते you have हैं, peace, शांति you होती have है, healing, चंगाई होती you have है, salvation. उद्धार होता है, No matter what, कुछ भी हो जाए, you live आप in a जीते हो simple एक world. पाप भरे जीवन में You live in peace. आप एक शांति भरा In the जीवन, midst of persecution, हर तरह से सताव हो रहा है, when you have जब Jesus, आपके पास यीशु होता है, you will have peace. आपको शांति मिलती I है। was listening and one old lady पास्टर कह रही है, बूढ़ी औरत की गवाही सुन रही थी in the morning सुबह in the YouTube. YouTube पे, She was 5 times put into prison. उसको 5 बार जेल में रखा She गया, was from China. वो चाइना से है, And she was imprisoned in 5 times in the prison 5 बार वो जेल गई है because of Jesus Christ. यीशु के लिए। Whenever she go to prison, जब भी वो जेल जाती है, she was preach the prisoner about Jesus Christ. तो वहाँ के कैदियों को प्रभु का वचन She सुना was arrested because of she was preaching the और gospel. सुसमाचार बांटने की वजह से ही उसको पकड़ा So the गया। government thought that this woman, if they arrest and put into prison, she will stop तो preaching. लोगों ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इस औरत को रोड से पकड़ के जेल में डाल देंगे ना तो सुसमाचार बांटना बंद हो But जाएगा। as she entered to prison, लेकिन जैसे ही वो गई उसके अंदर, still she is speaking the Jesus वो Christ. जेल में जाने के बावजूद भी परमेश्वर के बारे में Inside the cell, जेल के अंदर भी many people believe. बहुत लोगों ने विश्वास She किया was bring out again, और दोबारा से उसको जेल से भी निकाल दिया, preach the gospel again, सुसमाचार फिर सुना, arrest again, दोबारा पकड़ लिया, put them again, फिर दोबारा जेल में डाला, bring out again. फिर दोबारा निकाला। Then she said, फिर उसने कहा, I will never stop talking मैं about कभी भी यीशु के बारे में बात my नहीं करूंगी। Savior मेरा who बचाने saved वाला my life. जिसने मेरा जीवन बचाया And He come to save my और वो life. आया मुझे बचाने के I लिए, got मुझे salvation. उद्धार मिला। I don't want मुझे दिल- my brothers and sisters मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई go बहन to वो hell. नरक में जाए, I need to save them. मुझे इन्हें बचाना I need to preach the gospel. मुझे इन्हें सुसमाचार Because सुनाना this है। gospel क्योंकि ये सुसमाचार only can save बचा सकता है those who are in prison, जो लोग जेल में हैं उनको भी, those who are outside of the prison. जो जेल के बाहर है उनको भी। So now she has become old, अब वो बूढ़ा जैसे हो गई, but now she is sharing the testimony पर अब वो अपनी गवाहियां बांट and रही है। writes so many books, बहुत सारी बुक्स लिख रही and many people reading about और him. बहुत लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। So though, if you really have believed in अगर Christ, आप सच में यीशु if मसीह you विश्वास really करते found हैं, the Savior, अगर आप सच में अपने उद्धारकर्ता you को will पा never लिया है, afraid आप कभी डरोगे of नहीं persecution, कि कोई सताएगा, of sickness. कोई मारेगा, बीमारी हो poverty. जाएगी, कोई गरीबी आ जाएगी, Anything can happen, कुछ भी हो तो In सकता this है world. इस दुनिया में। but you will build in the rock. पर आप फिर भी उनकी चट्टान पे खड़े हुए हैं, The rock is Jesus तो Christ. चट्टान यीशु है। So build your life, तो अपना जीवन, build your faith अपना विश्वास in बनाए the rock of Jesus. तो यीशु मसीह की चट्टान के So ऊपर। when the wind comes, तब तक कि जब When आपके the चले, temptation comes, जब चिंताएं आएंगी, when the cyclone comes, जब कोई भी तरह की बाढ़ आपदा आएगी, when the flood comes, कोई भी बीमारी परेशानी आएगी, nobody cannot destroy the rock. तो कोई भी आपकी चट्टान को हिला नहीं So in पाएगा। your life, तो आपके जीवन if में you faith in Jesus अगर आप Christ, यीशु मसीह विश्वास temptation will come, परेशानियां तो persecution will आएंगी, come, मुश्किलें भी आएंगी, accusation will लोग come, सताएंगे, you will put into death. आपको शायद मृत्यु में भी डाल दें। Let that be. अरे मरना है तो मर भी सकते हैं, You will go to heaven. लेकिन मरने के बाद भी आप स्वर्ग तो So जाएंगे। in that point of death, तो उस समय मृत्यु the के Bible घड़ी says in में the Revelation, बाइबल कहती है प्रकाश even the point of death, कि मृत्यु के अंत तक if your faith, अगर आप विश्वास के रहते you will हैं receive the crown of life. तभी आपको जीवन का मुकुट मिलता है। But when you're about to die for Jesus Christ, लेकिन अगर आप यीशु के लिए मरने वाले हो you change your mind. और उससे नहीं यार मर के क्या फायदा होगा, You
you will not get and you will not enter the तो kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। So even to the point of death, तो इसलिए मृत्यु की घड़ी में भी let us believe in तो God. आइए प्रभु विश्वास Trust करें, in God. विश्वास करें। Your sickness will not shake your faith. आपकी बीमारी आपके विश्वास को हिलाने ना पाए। Your financial problems will not shake your faith. आपकी पैसों की परेशानी आपके विश्वास को हिलाना Your ना पाए। family issues will not shake your आपकी faith. फैमिली की परेशानियां आपके विश्वास को हिलाना पाए। Stand firm in Jesus Christ. यीशु मसीह में खड़े रहो, Because He has saved your life क्योंकि उसने अपने जीवन को बचाया है from your sin. पाप से। Now is your waiting to reign together. अब क्या करना है? वो इंतजार कर रहे हैं कि आप उधर राज करेंगे। Amen. आमीन। We all stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएं।